بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اگلے 24 گھنٹے پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہے۔ کل چونکہ سموار ہفتے کا جو ہے وہ اس کی شروعات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بہت بڑا شب خون مارنے جا رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A یعنی کہ فلور کراسنگ کا جو قانون ہے اس کی سماعت مقرر ہے کہ اس کو قلعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس منیب اختر عین ممکن ہے کہ وہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں، بینچ ٹوٹ جائے گا اور قاضی صاحب 2-3 سماعتوں کے اندر جو ہے وہ اس 63A کو اڑا کر رکھ دیں گے اور فلور کراس کروا کر آئینی ترمیمی بل پاس کروایا جائے گا۔ لیکن جناب، کل پنڈی کا احتجاج تھا اور اب حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس پر آج ہم نے بات بڑی واضح طور پر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس وقت صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پنڈی احتجاج کے بعد نئی پٹاری کھل چکی ہے۔ کل کا احتجاج بہت اہم تھا، ہم نے گراؤنڈ سے رپورٹ کیا، ایک سیکنڈ آپ کو رپورٹ کیا کہ کیا صورتحال تھی۔ اب ججز کا پی سی او پر حلف لینے کی خبر ہے کہ ایمرجنسی نافذ ہونے جا رہی ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ ایک خط سامنے آیا ہے جس نے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب جیسے ججز ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا کر رکھتی ہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر دوسری جانب پنڈی احتجاج کے بعد فوج نے عمران خان کو بھی پیغام پہنچا دیا ہے، اور پھر وہ پیغام کیا ہے اور اس صورتحال کے اندر اب چیزیں جو ہیں وہ کس جانب جائیں گی، اور اس کو آج ہم نے بڑا واضح طور پر جو ہے اس کی آج پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ اور تیسری خبر کہ علی امین گھنڈا پور کی جانب سے ایک بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے، خونی انقلاب کی دھمکی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آپ نے کل دیکھا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج تھا راولپنڈی میں، پورا پنڈی جو ہے وہ جیل کا منظر پیش کر رہا تھا، شیلنگ ہوئی، پیلٹ پیپر گنز کا استعمال ہوا، ربڑ کی گولیوں کا استعمال ہوا، کارکن کو گرفتار کیا گیا۔ آپ نے کل پاکستان میں فسطائیت کا ایک اور نیا دور دیکھا۔ میں وہیں پر موجود تھا لیاقت باغ میں، جو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یقین کریں میں آپ کو شاید وہ بیان نہیں کر سکتا، کچھ سینسٹیوٹی ہوتی ہیں چیزوں کی، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کس جانب گئی۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے عین موقع پر بڑا اچھا فیصلہ کیا، واپس چلے گئے۔ پھر میں نے آپ کو وہاں سے خبر دی کل رات 2 بجے لیاقت باغ سے کہ گنڈا پور صاحب کو کہیں پر رابطہ ہوا ہے، جس کے بعد حکومت بہت پریشان ہے اور پی ٹی آئی نے جو ان کا جو نشانہ ہے وہ کامیابی سے ان کی جگہ پر جا کر لگ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کل کامیاب ہوئی ہے۔ اب جناب اس سب کے اندر کل پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر جو شیلنگ ہوئی، جو گنز کا استعمال ہوا، اس پر کے پی کے کا جو ہے موقف آ چکا ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر صاحب صاحب، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں پر شیلنگ کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاری حکومت نے کل ماڈل ٹاؤن جیل ثانیہ کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ اب جو میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ اگر علی امین گھنڈا پور صاحب وہاں پر آ جاتے لیاقت باغ میں، پھر وہ صورتحال ہونی تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 2 صوبوں کی پولیس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتی تھی، 2 صوبے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اور ایک بار پھر سے فوج کو پی ٹی آئی سے لڑوانے کی ایک بدترین سازش ہو سکتی تھی۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے کل حکومت کو چکرا کے رکھ دیا اور کل انہوں نے بڑے واضح طور پر وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز کارکنان پر سیدھی سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ راولپنڈی شہر اور موٹر وے مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کل پاکستان تحریک انصاف کارکنوں پر براہ راست شیلنگ اور فائرنگ کی گئی ہے۔ شیلنگ پر صوبائی حکومت عدالت جائے گی، ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے سے قانونی کارروائی سے متعلق کہا جائے گا۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ایک جعلی راجکماری کی حکمرانی میں پاکستان تحریک انصاف خواتین پر بھی شیلنگ کی گئی۔ پرامن کارکنوں پر اس طرح شیلنگ اور فائرنگ کہاں کا قانون ہے؟ کیا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق نہیں تھا؟ قانون کی پاسداری کوئی خیبر پختونخوا حکومت سے سیکھے۔ کل وزیر اعلیٰ علی امین گھنڈا پور نے جس طرح پنجاب پولیس اہلکاروں کو محفوظ بنایا وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان خراج تحسین کی جو ہے مستحق ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے دلیر کارکنان نے بدترین فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور بدترین مارشل لا میں بھی اس طرح کی فسطائیت نہیں ہوتی جو کل آپ نے جو ہے وہ حکومت نے فسطائیت کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں۔ اب حکومت کا کے پی کے حکومت کا اس کے اوپر یہ موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، یعنی کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں۔ اب جناب آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں کہ علی امین گھنڈا پور صاحب نے ایک بہت بڑی دھمکی دے ڈالی۔ پنڈی احتجاج کے بعد گھنڈا پور صاحب نے جناب یہ دھمکی بڑی واضح اور بڑا
ग्रीन सिग्नल जो है वो मैसेज है उनको ताकतवरों को कि अब ये एक केपी के सूबा जो है वो तैयार हो चुका है। और कल इम्पैक्ट डाल दिया पीटीआई ने, कल जो है वो पैगाम पहुंचा दिया ताकतवर हल्कों को कि जब हम चाहें इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकते हैं, केपीके की आवाम तैयार है। और कल अब जो अली अमीन गंडापुर के साथ कारकुनान आए हुए थे वो उनकी गाड़ी के आगे लेट गए कि अब तुमने हमारे साथ पिंडी जाना है, हमने इनका मुकाबला करना है। लेकिन गंडापुर ने मुल्क को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। अब अली अमीन गंडापुर साहब का एक अहम तरीन बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि अब मैं इनकलाब का ऐलान करता हूं क्योंकि हमारे पास इनकलाब के अलावा अब कोई और हल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इनकलाब का ऐलान करता हूं, अब हल नहीं है। अब कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है, सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं और सलाम पेश करता हूं कि आप अपनी आजादी के लिए डटे हुए हैं। खास तौर पर केपीके पिंडी डिवीजन की आवाम को भी सलाम पेश करता हूं। ये आज अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अगर आप गोली चलाएंगे तो आपको भी गोली मारेंगे। ये वही सूरत हाल है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो रिफ्ट ये क्रिएट हुआ है कि दो सूबे एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब उन्होंने कह दिया कि आपने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं, अब हम आपके ऊपर गोलियां चलाएंगे, ऐसी की तैसी है। तुम्हारी इनकलाब का ऐलान जो है वो हो चुका है। और उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसा वक्त आ चुका है कि हमारी इज्जतों को पमाल किया गया, चादर और चार दीवारी को पमाल किया गया। हमने ज़रफ़ दिखाते हुए इस मुकाम मुल्क और पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ हमारे पर फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, गोलियां बरसाई गई, पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे लेकिन हमने उन्हें छोड़ दिया। कई पुलिस वाले जुल्म करने के बावजूद हमारे हत्थे चढ़े लेकिन मैंने उन्हें रेस्क्यू किया क्योंकि हमें उनके बच्चों और खानदान वालों का ख्याल था। पंजाब पुलिस के नौजवानों, तुम अगर अपने बाप की औलाद हो तो बताना कि तुम फंस गए थे और हमने तुम्हें छोड़ दिया इस जुल्म के बावजूद जो तुम करते रहे हो। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम पर गोलियां बरसा रहे हैं और हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई और तीसरे कारकुन को गोली लगी, इसका नहीं पता चल रहा कहां है। बराह रास्त आंसू गैस की शेल मारकर 50 से ज्यादा कारकुनों को जख्मी किया गया। पंजाब की हदूद शुरू होते ही हर 3 किलोमीटर के बाद हम पर शेल बरसाए गए, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। लेकिन सुन लो, अगर कोई गोली बरसाएगा तो उस पर भी गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे तो हम 10 गोलियां चलाएंगे, तुम एक आंसू गैस फेंकोगे तो हम एक लाठी मारोगे तो हम 10 मारेंगे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं, सुन लो, केपीके की आवाम जो है वो हमारे साथ है। कबाइल में जरगा करो और ये फैसला करो कि अगर आज कोई और निशाने पर है तो कल तुम भी हो सकते हो। सब इकट्ठे हो जाओ, मुतहद हो जाओ। जब हम जाएंगे तो अगर कोई समझता है कि वो हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं है। ये धमकी नहीं बल्कि इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान के इदारे अगर अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, उनकी राय की इज्जत नहीं कर सकते तो साइड पर हो जाएं। तमाम इदारों को पैगाम है कि आवाम को फैसला करने दें और सियासी फैसले सियासी बंदों को करने दें, बीच में ना आए। ये एक बहुत बड़ा और वाज़ेह मैसेज पहुंचा दिया गया है। ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है कि वो बात कर रहे हैं कि जनाब अब खुली जंग का ऐलान है, अब हम तुम पर भी शेल बरसाएंगे। हमारा जो पठान सूबा है यानी कि जो हमारे कबाइल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब जनाब हम जो है वो ईंट से ईंट बजाने पंजाब आ रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज जो है वो ताकतवर हल्कों को भी पहुंचा दिया है। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरह आती है। वही बात है जो आपको मैं बता रहा हूं कि ये एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। और फिर जनाब दूसरी जानिब जो फौज ने इमरान खान को इस एहतजाज के बाद पैगाम पहुंचाया है वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिंडी एहतजाज के बाद इस वक्त ताकतवर हल्के भी परेशान हैं कि अब इमरान खान का क्या किया जाए। वो जेल से बैठकर कॉल देते हैं, आवाम आ जाती है, वो जेल से बैठकर जो है वो जनाब कोई भी मैसेज देता है कौम को, कौम उस पर लब्बई कहती है कि वो जेल में बैठकर भी आज़ाद है और हम बाहर रहकर भी कह दें। तो इस सब के अंदर जनाब अंसार बासी साहब और सुहेल बड़ाई साहब ये वो तरजिया देते हैं, यानी कि इनको जो है वो माउथ पीस कह लें या आप इनको कह लें कि ये इदारे के गैर सरकारी तर्जुमान है तो कहना गलत नहीं होगा। सुहेल बड़ाई साहब का सबसे पहले तरजिया आपके सामने रखता हूँ कि वो कहते हैं कि मुक़्तदरा के पास शहबाज शरीफ से बेहतर कोई हल नहीं है, ना कोई चॉइस है, इसलिए निज़ाम इसी तरह चलेगा। तहरीक इंसाफ अपनी तसव्वुराती दुनिया से निकलकर हक़ाइक़ की दुनिया में क्यों नहीं आती। पीटीआई की आदत के अंदाजे मुसलसल गलत साबित हो रहे हैं, ना फौज के अंदर बगावत हुई है और ना होगी। अब ये एक मैसेज है कि आप जो हैं वो हमारे पास आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, आप माफी मांगे तो हम आ जाएंगे वरना आपके लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। ये पैगाम है सुहेल राइज के जरिए जनाब फौज का इमरान खान साहब को। और फिर दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब भी वही बात करते हैं जो इदारे की सोच होती है। तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ कबूलियत की भी जरूरत होती है। अगर आपको कबूलियत
कबूलियत, अगर आपके पास मकबूलियत है, कबूलियत नहीं, और अगर आप कबूलियत चाहते हैं तो फौज से टक्कर मत लें। ये एक मैसेज पहुंचाया गया है इमरान खान साहब को कि आप अगर हमसे टक्कर लेंगे तो आपके लिए कोई मकबूलियत नहीं है, आप जनाब पीछे हटें, हम भी पीछे हटने को तैयार हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो फौज का या एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान साहब को जो है वो दिया गया है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब अब जजेस का जनाब पीसीओ पर हल्की खबर है कि इमरजेंसी नाफिज होने जा रही है। एक तो कल का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब बहुत आम तरीन दिन है, 63A की समात है, और अगर ये कानून उड़ गया तो फिर डेफिनेटली पीटीए के एमएनएस को उठाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अगवा करके जनाब उनको कहा जाएगा कि आप जाकर हुकूमत को वोट दें। फ्लोर क्रॉस नहीं हो सकेगा, और आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं इस कानून के कदम होने के बाद, और आपका वोट काउंट होगा और यूं आईनी तरमीमी बिल जो है मंजूर करवा लिया जाएगा। तो ये 63A पर चीफ जस्टिस साहब कुछ बड़ा वार कर सकते हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस बेंच में शामिल हैं, और जराए बताते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं शायद कल जनाब या तो वो बेंच तोड़ दें या फिर कुछ नया सरप्राइज भी उनकी जानिब से आ सकता है। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है और नई आईनी तरमीम जो एक वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जो वो बनाने की कोशिश हो रही है कि इससे जस्टिस मंसूर का रास्ता रुक जाएगा, कादी साहब वहां पर चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं होगा, तमाम बड़े फैसले जो है वो वफाकी आईनी अदालत करेगी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को आप हल्का ना लें, जस्टिस मंसूर अली शाह के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी आपको बता रहा हूं, 8 जजेस नहीं, 2/3 उनके पास मौजूद है। तो अब मेरे पास जो खबर है कि आज जो लेटर लिखा गया है पाकिस्तान भर के वकला की जानिब से, तकरीबन ये 317 वकला हैं मुल्क भर के, उन्होंने आईनी अदालतों के जजेस के नाम खुला खाता लिख दिया, ओपन लेटर टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जजेस को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको ये लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। वो कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि ये आईनी अदालतें जो हैं वो किसी बैरून मुल्क भी हैं और मुल्कों के अंदर भी हैं, तो वो कहते हैं कि इससे सिस्टम नहीं चलेगा, इससे अदालतें मैनेज हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स मैनेज हो जाएंगी, हम बातचीत के लिए तैयार भी नहीं है, आपने हमें बुलाया तक नहीं, आपके पास ड्राफ्ट तक नहीं है। जो कहते हैं कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, उनको ये नहीं पता कि इस आईनी ड्राफ्ट में लिखा क्या हुआ है। ये इतनी खतरनाक तरामीम है कि आपके होश उड़ जाएंगे। जिस रात ये इतवार की रोज रात को जब ये वारदात डालने की कोशिश की जा रही थी नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर, तो उस वक्त मैंने आपको खबर दी थी कि आप मोहम्मद बिन सलमान मॉडल को भूल जाएंगे, ये सीधी सीधी फांसियां हैं वफाकी आईनी अदालतें। लेकिन ये बिल तो पास होगा, ये आपको मैं बता रहा हूं कि बिल किसी न किसी तरीके से पास होगा और हर तरह से कोशिश की जाएगी। शहबाज शरीफ साहब दौरा मुकम्मल करके अमेरिका का आएंगे तो उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एक नया दंगल लगेगा। तो अब जो लेटर लिखा गया है जजेस के नाम, उसमें उन्होंने कहा कि वकला कहते हैं कि जिसने तरमीम लिखी है वो कभी तस्लीम तक नहीं करेगा कि उसने अपने हाथों से तरमीम लिखी है। जस्टिस मुनीर का जिक्र हुआ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि जजेस आईनी तरमीम होने पर नई अदालत का हिस्सा और हुकूमत के साथ शरीक जुर्म ना बने, क्योंकि ये पीसीओ जज और पीसीओ अदालतें ही खिलाएंगे। ये सबसे खतरनाक बात है, पीसीओ जज और पीसीओ अदालतें। पीसीओ जजेस कैसे कहते हैं थे मुशर्रफ के दौर में जनाब पीसीओ के ऊपर जजेस ने हल्फ उठाया था, यानी कि जब मार्शल लॉ लग जाता है, जब इमरजेंसी मुल्क में लगती है, डेमोक्रेसी जो है वो जनाब टॉपल कर दी जाती है, उसको जमहूरियत को ऊपर हमला होता है और फिर एक जर्नैल जो है वो आकर फैसले करता है। तो ये जो है वो जनाब वकला ने कहा है कि पीसीओ जजेस जो है उनके तहत हल्फ उठाया जाएगा और वाकई आईनी अदालतें वो कुछ हैं जो वो कहेंगे फिर वही फैसले होंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब के हवाले से है, और इस पर शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ा दिलचस्प किस्म का तस्वीर किया है। वो कहते हैं कि काजी फायद ईसा अपने रास्ते से हट गए, एक इज्जत का रास्ता है, दूसरा नौकरी का रास्ता है। आईनी अदालतें बनाने की बातें वो कर रहे हैं जो 70 करोड़ रुपए देकर सेनेटर बने और 450 अरकान पार्लियामेंट में से किसी ने आईनी तरमीम तक नहीं पढ़ी होगी, और वो कहते हैं कि आईनी अदालतें बननी चाहिए। तो ये आपके सामने बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त सूरत हाल कितनी खतरनाक है। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस जंग आपने लाजमी है। लखनऊ लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।